राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर अस्पताल लूट के संस्कार के मांग पर आवासीय क्षेत्र के विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी संस्थान के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क अवरोध। जल्द से जल्द सड़क संस्कार का किया गया मांग। दक्षिण हाइलाकांदी के घारमुड़ा बागचौड़ा इलाके में सरकारी जमीन पर घर बनाए जाने पर वन विभाग ने किया उच्छेद। आवासीय क्षेत्र के लोगों ने किया प्रतिक्रिया। जालेंगा क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन हड़पने की जा रही है प्रयास। किसके प्रभाव से 400 से भी ज्यादा बीघा जमीन अपने गिरफ्त में किए हैं, जानने के लिए उत्सुक हैं बस जालेंगा क्षेत्र के लोग। बाल शिशु मौसम विभाग को लेकर देश के विभिन्न क्षेत्र में तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने वक्तव्य के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्कूल के एक छात्रा दिया गया संबर्धना। हाइलाकांदी जिले के जानकी बाजार क्षेत्र में देह व्यापार से जुड़े एक महिला को गिरफ्तार करने के साथ साथ सजा के मांग पर किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। घर बार में किया गया तोड़फाड़। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर अस्पताल लूट के सड़क संस्कार के मांग को सामने रखते हुए आवासीय क्षेत्र के विभिन्न समुदाय के लोग तथा कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं ने सड़क अवरोध किया। लगभग 2 घंटे तक किए गए सड़क अवरोध के चलते आवागमन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आवासीय क्षेत्र के लोगों का मांग था कि पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन के बाद भी इस क्षेत्र में सड़क संस्कार नहीं किया जा रहा है और न ही पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिसके चलते धूल की वजह से आवासीय क्षेत्र के लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई दफा मांगों को लेकर इस दिन संगठन कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष अपने मतों का बखान किया और जल्द से जल्द सड़क संस्कार का मांग रखते हुए सांसद, विधायक व पूर्त विभाग के कार्यकर्ताओं के प्रति अपना अपील भी किए। रास्ता बंद रास्ता ব্যবসায়িক এবং আবাসিক পাড়ার মানুষ মিলিয়া একজুট বান্ধিয়া আমরা 6 মাস ধরে কষ্ট করতেছি। আমরা ব্রঙ্কাইটিস বিভিন্ন রকম রোগ দেখা দিচ্ছে বা ঘর থেকে বাইরেও যান না। ঘরের ভিতরে ধুলা, রাস্তাঘাটও ধুলা। কিছু কমপ্লেন করার পরে কিছু মাটি বোড়া করছে। এই শহরের মধ্যে কি মাটি বোড়া লাগে এরকম ঘরটির মধ্যে মাটি দিয়ে এখন নিলাম শহর ওটা শিলচর আসামে 2 নম্বর শহর শিলচর। এই শহরের অবস্থা এরকম। আমরা বিভিন্ন রকমের সম্মুখীন দিচ্ছি সমস্যা। রোজ সকালে উঠেই আমরা এগুলো দেখতেছি, চোখে দেখা যায় না ধুলা ধুলা। আজকে আমরা প্রতিবাদ নামছি সারা আইসুন উঠি সারা আইসুন আমার পর আশ্বাস দিচ্ছেন আমরা 1-2 ঘন্টার মধ্যে একটা ব্যবস্থা করবো আর তো পারমানেন্টলি ব্যবস্থা করবো। যোগ 2বার 3বার যোগ দিয়ে দেবো, ইঞ্জিনিয়ার এগো কন্ট্রাক্টর এগো সবাই তারা বিয়োগ করবো। স্যার ডিসকাউন্ট লিয়া একটা কিছু সমাধান বাড়ি ওটা লেগে আমরা আপাতত আমরা ইয়ে করছি, ওটা উগ্র করছি আপাতত। আবার কমবো একটু পরে যে না হয়েছে মানে যদি না হয় আপনারা দাবি আবার কম দাবি দেওয়া আন্দোলন নামবা এখন আবার আজকে নামবো আবার আন্দোলন এখন নাম নিব। ডেইলি কোনো না কোনো একটা দুটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে আর এর চেয়ে বাজে অবস্থা ধুলায়। আপনি ধুলায় অন্ধকার হয়ে যায় সারাদিন। এই হসপিটাল রোডটা ধুলায় অন্ধকার থাকে। এখান থেকে মেডিকেলের রুগী যাচ্ছে, স্টুডেন্ট যাচ্ছে, এনআইটি স্টুডেন্ট যাচ্ছে, মেডিকেল স্টুডেন্ট যাচ্ছে, ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট যাচ্ছে, হাইলাকান্দি যাচ্ছে, মিজোরামের লোকগুলা যাচ্ছে। এই ভাইটাল একটা শহর, এই মুখ্য একটা সড়ক, এই সড়কের এই হাল মানে আমরা লজ্জায় মানে আমাদের মাথা হেট হয়ে গেছে। মানে আপনারা স্থানীয় লোক? হ্যাঁ, আমরা লোক, আমরা দোকানদার, ব্যবসায়ী আর আমাদের পাড়ার মানুষ। আমরা আজকে না পেরে এই আন্দোলনে নেমেছি।
আমরা মানে ধৈর্যের বাইরে এখন আপনার দাবিটা কি দাবিগুলো কি? দাবিটায় রাস্তাটা আমরা জানি যে ঠিক আছে টেকনিক্যালি সময় লাগবে, কিন্তু এতদিনে তো একটা সুরা আছে, জল তো অন্তত দিতে পারেনি, ধুলা তো দমন করতে পারেন। এইটা মানবিকতায় কমসে কম আপনারা দেখাতে পারেন। আপনারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও আছেন, প্রশাসনও আছে, তাদের কি আমরা আজকে কি বন্ধ করে তাদেরকে এইটা মনে করানো হয়েছে? আর তারা কি জানে না? তারা কি রাস্তা দিয়ে হাঁটাফেরা করে না? কি ব্যাপার? কেন আমাদেরকে জেনারেল পাবলিককে কেন এত হেয় দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে? কারণ কি, কেন আমাদের এই দাবিগুলো মানা হচ্ছে না? আমাদের তো আর কোনো দাবি নাই, কোনোদিন তো কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে যায়নি যে আমার এটা কাজ করিয়ে দিই। আমরা তো এই জনস্বার্থের জন্য এই রাস্তাটা ঠিক করে দেওয়ার জন্য। আমরা জানি টেকনিক্যালি এটা থাকে, আজকে রাতারাতি রাস্তাটা ঠিক হবে না, কিন্তু জল তো আপনারা দিতে পারেন। हाइलाकांदी जिले के घाड़मुड़ा बागचौरा जीपी के अधीन 5 पीर के मकाम क्षेत्र में 35 बीघा जमीन सरकारी तौर पे अलॉटमेंट दिया गया था और इसके चलते इसका टैक्स भी दिया जा रहा है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना तौर पे शुक्र अली शेख की लड़की सुरमिला बेगम शेख के अधीन यह जमीन था और इस जमीन पर कई पेड़ पौधे लगाए गए थे, किंतु पिछले 17 जुलाई को एकाएक किसी नोटिस के बगैर ही घाड़मुड़ा वन विभाग के वनकर्ता ध्रुव ज्योति दास ने गैर जिम्मेदाराना तौर पे इस क्षेत्र में पहुंचकर पूरे क्षेत्र को काट चाट कर पूरी तरह विध्वंस कर दिया। मुद्दे को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरीला बेगम ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और अपने ऊपर हुए इस निग्रह तथा उनके लगाए गए पौधों को काटे जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और मुख्यमंत्री तथा विभागीय प्रशासन से सहयोगिता का गुहार भी लगाया। কোন দিন হাটিয়ে ফেলাইছিল এটা? ডেট কত আসলো? 17 তারিখ, 18 তারিখ। ও সিগন্যাল নাই না, ও না মুকামর নাইতে আসলে তাহলে ফোন মারছি। ও না না সাংবাদিক বেটারে না ই বেটির তোমার লাখানিকা সারা খলর মুরা ঠিকই কইছিল কিতার। যথেষ্ট হয়েছে এখন। কি পর্যন্ত সুন্দর গুয়ার গাছ, খালি কুমা 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 গাছ। গুয়ার গাছ একটা শুনতা হইছে না, সামনে ঘর হুয়া হইছে তো 130টা 230টা এবার 60টা কলার গাছ। এমপি কৃপানাথ মালার আমি দৃষ্টি আকর্ষণ চাই যে আমার বিচারগুলো উপযুক্ত পাওয়ার জন্য আমি বিনম্র অনুরোধ করি আর এবং এমএলএ সুজামুদ্দিনের কাছে এবং রামনাথপুর পুলিশ প্রশাসনের কাছে এবং হাইলাকান্দি ডিসি স্যারের কাছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারের কাছে আমি বিনম্র অনুরোধ চাই যে ফরেস্টে যে আমার ক্ষতিগুলা করেছে এই ক্ষতিগুলা সম্পূর্ণ উপযুক্ত বিচার পাওয়ার জন্য আমার বিনম্র অনুরোধ আমি চাই আপনাদের কাছে। छोटो जालेंगा व बड़ो जालेंगा क्षेत्र में जयंत कुमार पाल व पांडालाल भट्टाचार्य नाम के 2 जमीन माफियाओं द्वारा इलाके में पोलो ग्राउंड दखल किए जाने के मुद्दे को लेकर श्रमिकों के साथ उनका मुठभेड़ होने की जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार जबरन गैर जिम्मेदाराना तौर पे दोनों आरोपी जब जमीन दखल के लिए निकले तो इसी दौरान गांव के श्रमिकों ने इसका विरोध किया। श्रमिकों के साथ कई क्षेत्रों में उत्तप्त माहौल खड़ा हुआ। बाद में आपसी बातचीत के जरिए मामले का सुराहा किया गया। इधर मुद्दे को लेकर चाय श्रमिक यूनियन तथा वराक चाय युवा संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस सुपर को स्मारक लिपि प्रदान किया गया। गौरतलब है कि बाद में दोनों आरोपी पान्नालाल भट्टाचार्य व जयंत कुमार पाल ने जहां अपना कदम पीछे हटाया तो इसी दौरान आने वाले दिनों में श्रमिकों को किसी प्रकार के हैरान न किए जाने की उम्मीद को सामने रखते हुए बराक चाय श्रमिक यूनियन तथा बराक चाय श्रमिक युवा परिषद के कार्यकर्ताओं को उद्योग से स्मारक लिपि पुलिस सुपर को प्रदान किया गया। मुद्दे को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता लालन ग्वाला तथा दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। আমাদের বড়জালেঙ্গা বাগানের গোল্ফ কোর্স এরিয়া সেটা কিছু দুষ্কৃতিকারী দখল নেওয়ার চেষ্টা করে।
তারপর আমরা যখন খবর পাই তখন বাগান শ্রমিক সবাই মিলে গিয়ে ওদের যে ক্যাপচারিং করেছিল ওই সব আমরা ধূলিসাৎ করে দিই। তারপরে আমরা পঞ্চায়েতদের নিয়ে এখানে এসপি মহোদয়ের কাছে আসি এবং ওনাকে সব বিবরণ দিই যে আমাদের এটা পুরানা ঐতিহ্যবাহী বর্জালেঙ্গা গল্ফ কোর্স যেটা এটা আমাদের রাখা হয়েছে ওইখানের একটা স্মৃতি হিসাবে, আর যেটা এখন ভূমাফিয়ারা দখল করতে চাইছে। মাফিয়াটার নাম বলতে পারবেন? মাফিয়া পান্নালাল ভট্টাচার্য আর তার সহযোগী জয়ন্ত কুমার পাল। আপনার নাম? আমার নাম শঙ্কর দাস। আমাদের কাছাড়ের পুলিশ অধীক্ষকের কার্যালয়ে এসেছিলাম এবং আমরা বর্জালেঙ্গা ব্লকে আমাদের চা বাগান যেটা সেই বাগান পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, ম্যানেজমেন্টের প্রতিনিধিরা রয়েছেন, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এসপি স্যারের সাথে দেখা করেছি এবং একটা স্মারকলিপি প্রদান করেছি বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বরাক উপত্যকার চা যুব কল্যাণ সমিতির সহযোগিতায়। এটা সাবমিট করার মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে বিভিন্ন বাগানের জায়গাগুলা ভূমাফিয়াদের নজরে পড়েছে, ভূমাফিয়ারা অবৈধভাবে এগুলা দখল করার একটা প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং কিছুদিন পূর্বে বর্জালেঙ্গা ব্লকেও তদ্রূপ সেই রকমের ভূমি মাফিয়ারা সেখানে করেছেন, যদিও আমাদের শ্রমিকরা তাদেরকে তাড়া করেছেন সেখান থেকে এবং সেই সব ভূমি মাফিয়াদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবিতে আজকে আমরা এসপি স্যারের দ্বারস্থ হয়েছি এবং বর্জালেঙ্গা ব্লক বাগানের যে জমি ভূমাফিয়ারা প্রায় দখল করার উপক্রম করেছিল সেটাকে প্রতিহত করতে আজকে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি এবং বিভিন্ন বাগানের যেখানেই ভূমাফিয়ারা বাগানের জমি অবৈধভাবে দখল করার প্রয়াস করবে সেখানেই বরাক চা যুব কল্যাণ সমিতি এবং বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন বাগান পঞ্চায়েত এবং বাগানের ম্যানেজমেন্টের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে সেই জমি রক্ষার কাজ চালিয়ে যাবে। আপনার নামটা স্যার? আমার নাম লালন প্রসাদ গোয়ালা, আমি বরাক ভ্যালি চা যুব কল্যাণ সমিতির সভাপতি। যে দখল আমরা রাখেছি এটা আমাদের কম বেশ করে মোটামুটি আমার 35-40 বছর বয়স চলছে। ছোটোবেলায় এই জায়গাটা আমি দেখে করে যাচ্ছি। এখন আমাদের এই জমিন পান্নালাল ভট্টাচার্য এবং কুরুপাল জর্জবর্তী দখল করে এটা নিতে চাই, কিন্তু আমরা বাগানের শ্রমিকরা দিতে চাই না, এটাই আমাদের। बाल जलवायु विभाग के कार्यकर्ता तथा दूसरे कई हस्तियों को संबर्धना प्रदान किया गया। सूत्र के अनुसार बाल जलवायु कार्यकर्ता के वरिष्ठ कर्म संस्था की 12 वर्षीय लिसु प्रिया कंगुजम को विभिन्न संगठन की ओर से इस दिन सम्मानित किया गया। सूत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यकर्ताओं की राजदूत तथा करणजीत कंजुगम एवं विद्या रानी कंजुगम की पुत्री मिस लिसु प्रिया कंगुजम को फुलेरतोल ग्रामीण विकास समिति एवं ग्राम सुरक्षा महिला समिति की ओर से इस दिन मंगलवार को लखीपुर क्षेत्र में फुलरतल नया ग्राम स्थित एक मंडप में स्वागत कर एवं जलवायु जागरूकता बैठक में भाग लिए जाने पर उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सभापति तथा सभा के मध्यमणि के रूप में उपस्थित थे मिस लिसु प्रिया कंगुजम। कुल मिलाकर आनंदपूर्ण माहौल में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया और बच्चों को इस संदर्भ में उजागर भी किए गए। हमारे अंकल बोल रहे हैं कि प्लास्टिक कंपनी को बैन करने के लिए, बट लाइक प्लास्टिक कंपनी को बैन करने से क्या मिलेगा? प्लास्टिक बैन हो जाएगा, हो गया। बट लाइक प्लास्टिक एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट किसने उसे गंदा बनाया, किसने क्यों किया, किसने प्लास्टिक पोल्यूशन को क्रिएट किया? वो हम ह्यूमंस ने किया है, हम आदमी ने किया है। तो बैन करना छोड़ दो, अगर हमारा बिहेवियर अगर हमने चेंज ही नहीं किया तो कोई और मटेरियल ला दो, उससे भी प्लास्टिक हम वही उसका पोल्यूशन बना देंगे। तो दैट्स नॉट द सॉल्यूशन ऑफ बैनिंग अ कंपनी, राइट, अ प्लास्टिक कंपनी। तो इसलिए हमें अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए, जैसे मैंने आपसे पिछले बोला मेरे स्पीच में। तो बिहेवियर चेंज करने से दैट वुड बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू सॉल्व द क्लाइमेट क्राइसिस, टू सॉल्व एनी पोल्यूशन, एनी अदर क्राइसिस टू। तो बिहेवियर चेंज करना ही नंबर 1 स्टेप है जो हमें करना चाहिए। हाँ, थैंक यू। लैंग्वेज में मैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट हूँ, एक सिंपल से बच्ची 7th ग्रेडर हूँ। मैं बस 12 years old इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हूँ, मणिपुर से, मैं एक ट्राइब। तो आज मैं यहाँ पे आई
Nabila to the people living here. So, my message to them is that please don't throw garbage or plastic at streets, oceans, rivers, seas, or any other places. हमें ना अपना गार्बेज, हमारा प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा ना कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। तो हमें बहुत सारा क्या बोलते हैं, हमें प्लांट करना चाहिए हमारे ट्रीज। एंड अगर हम प्लांट कर रहे हैं तो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट ट्री, राइट? और देन प्लांट्स हैपनिंग। एंड अगर हम वो प्लांट्स हैपनिंग जो हमने उगाया है, जो हमने लगाया है, अगर हम उसका रिस्पेक्ट नहीं किया, विद लव एंड रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्लांटिंग दैट प्लांट्स हैपनिंग, राइट? तो उसी पॉइंट लगाने के लिए वी शुड do stuff like, as I told you, all other things can make a huge difference. हमें छोटे-छोटे steps लेना चाहिए हमारे पृथ्वी को, हमारी धरती, हमारी मदर नेचर, हमारे भारत को बचाने के लिए। एंड अगर हमने ये नहीं किया तो इससे भी जो हम अभी भी environmental issues, climate disasters जो हम अभी फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, उससे और भयंकर आएंगे। It would be much more worse in the future if you continue your actions. And as I say to all the people living out there in this world, in this globe, changing your behavior is the first step to saving our planet. So change your behavior. आपको अपने behavior को change करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो ये और worse condition में आप face करोगे। And you will not be ready for it. मैं सही में बोल रही हूँ, आप उसके लिए आप रेडी नहीं हो। तो हम अपनी धरती को बचाने के लिए हम एक दिल के हम करते हैं। मेरा भी मूवमेंट है, चाइल्ड मूवमेंट, आप उसकी we can join hands together. So yeah, let's justice. मैंने justice है, कांदा में आप भी justice है भी। जब मैं justice बोलूँगी तो आप भी justice बोलो। I say climate, you say justice. Climate, justice. Climate, justice. I say climate, you say action. Climate, justice. Climate, justice. I say climate, you say justice. समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में हालाकांड जिले के 5 ग्राम थाना के अधीन उत्तर कांचनपुर दूसरे खंड इलाके में एक परिवार को देह व्यवसाय के आरोप पर उसके घर द्वार तोड़ दिया गया। गांव के लोगों का आरोप था कि पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में अवैध तौर पर देह व्यापार चल रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन और दूसरे कार्यकर्ताओं को जानकारी देने के बाद भी कोई अहम कदम नहीं उठाया जा रहा है, जबकि चलते आबादी क्षेत्र के पुरुष, महिला व विभिन्न स्तर के लोगों ने एक मंच पर जुटकर इस क्षेत्र में घर को तोड़फोड़ कर इस इलाके में साधारण माहौल खड़ा किया। हालांकि गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों के चलते तथा देह व्यापार के चलते आबादी क्षेत्र के लोगों के जनजीवन बेहाल हो चुका था। लीला रानी दास, सजना रानी दास, ममता दास, रूमा दास व दूसरे महिलाओं ने इस दिन काफी देर तक आरोप प्रत्यारोप के चलते संवाद माध्यम को विस्तारित जानकारी दिया और जब जब ये लोग अपनी कार्रवाई को अंजाम दिए जाने के लिए तैयार होते तब कुछ गुंडे द्वारा इस क्षेत्र में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन जब गांव के लोग एक मंच पर जुट गए तो इसी दौरान आरोपी फरार हो गए। लोगों ने रोष में आकर घर को ही तोड़ डाला और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी रखा। चलबे ना আমাদের এলাকা দেহ ব্যবসা চলবে না আমাদের এলাকা দেহ ব্যবসা চলবে না জানকি বাজার এলাকা দেহ ব্যবসা চলবে না জানকি বাজার এলাকা দেহ ব্যবসা চলবে না এই দেহ ব্যবসা করে নারীকে অতি সত্য আইনের বিষয় জানকি বাজার উত্তর কাঞ্চনপুর পার্ট 2
আমাদের এখানে যে একটা মেলুক মানুষ অকথ্য জঘন্য ভাষা ব্যবহার করে, নানান ধরনের অত্যাচার করে, গ্রামের মানুষ মিলিয়া এই গালাগালি করে, নানান ধরনের ব্যবসা করে, এই যে গৃহ ব্যবসা করে, নানান ধরনের বিভিন্ন ধরনের মানুষ হয়। আমরা তো চিনার মতো ক্ষমতা নাই। এই যে ব্যবসা শুরু করার পরে আমরা গ্রামের মহিলারা মানে লজ্জা বসিত হইয়া মানে স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীরা দিতে পারে না, নানান ধরনের অত্যাচার, নানান ধরনের কুব্যবহার, কুআচরণ এইসব ব্যবহার করে, বা দা লইয়া পারে, লাঠি লইয়া পারে, তাই লোকে মানে আমরা কই যদি এইরকম করিস না বা ভালোভাবে চল, সুন্দরভাবে চল, এইরকম করিস না, নানান ধরনের অসত্য ভাষা, জঘন্য ভাষা ব্যবহার করে, আর দা লইয়া কুদাকুদি করে, গ্রামের মানুষ মিলে গিয়া গালাগালি করে। এখানে খারা এখানে এখানে তো আয় দাদা কিতা কইতাম, মানে হিন্দু আর মুসলিম আর নাগাও আর বুদ্ধ আর এটা চিনার মতো নাই, মানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ কি হইতাম, দুঃখের বিষয় মানে আর কি। এইরকম মানে বাধা দিলে আমরা অত্যাচার করে, মানে ভয় দেখায়, প্রাণের ভয় দেখায়, যেন সেদমারি খাটি লিমু, গলা খাটি লিমু, নানান ধরনের অত্যাচার, অকথ্য ভাষা, জঘন্য ভাষা। যেমন একটা ছেলে মানুষ, আমি মেলুক মানুষ। মহিলার নামটা কি? রাকিরানী দাস। উনি এখন কোথায় বর্তমানে? উনি ওখান কই গেছে জানি না, তাইতে তো আমরা গ্রামের পাড়ার মানুষে বেঠিনতে আর কি ধরা লাগি চেষ্টা করলা, তাই তো বাগি গেছে কই থেকে গুন্ডান লইয়া আসলো। এই যে আমরা গ্রামের মেলুকরা ফিটিবার লাগি, আমরা মেলুকে তারারে ধরতে গিয়া তাই বাগি গেছে গিয়া। ছেলে যেটা মানে বেটা যেটা ইটারে ধরা হয়েছে, ধরিয়া রাখি আমরা থানা কল করছি, থানা দিলেছি আমরা। এখন দাবি কিটা? এটা আমরা এখানে আমার দাবি ওটাও মানে আমরা দেশবাসী গ্রামও মানে আমরা এটা রাখতে চাই না। আমরা দেশ নষ্ট করে দেয়, গ্রাম নষ্ট করে দেয়, বাচ্চা কাচ্চা নষ্ট হয়ে যায় আর কি, আমরা স্কুল কলেজে দিতে পারি না। এই নিয়ে আমি কি বলবো, এই যে এরকম কাজ করে আমারও সত্যি খারাপ লাগে। আমার যে 2টা বাচ্চা আছে, তাই বাচ্চার কারণে আমার বাচ্চারে মোটামুটি আমার বাচ্চা গেতা এই এলাকার যত বাচ্চা আছে সামনের দিকে বের হইতে পারে না, বাইরনির পরেও একটা না একটা তার বাচ্চা নিতে করেছে। তারপরে তার কাছে যদি মানে কোনো কথা লইয়া আই, তাই কিতা কইব এটা আমি জানি না, আমার বাচ্চা নিতে লগে যে লাগবো আমি তার হাত কাটিমু, ট্যাং কাটিমু, এরকম কথা কয় সবসময়। তাই এখানে মানে সেই যে মহিলা উনি এই কি করে থাকেন? কি করে এখন ঘরের ভিতরে কি করে কি হয়, তার ঘরে তো দেখি অনেক মানুষ আয়, কিন্তু ঘরের ভিতরে কি করে সেটা তো আমি দেখি। মানুষ আয়, অনেক মানুষ খারায় এখন মানুষ বেলা বা দিনের বেলা আমি যদি চিনতাম তাহলে তো আপনারা কইতাম। এটা তো মানুষ আয়, বিভিন্ন ধরনের মানুষ। মোবাইল লাইট দেখাও। पिछले कुछ दिनों से शिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड के सामने एक युवक यूं ही पड़ा सड़ रहा है, लेकिन आते जाते लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन कोई सहयोगिता नहीं कर रहा है। कई निजी संगठन के कार्यकर्ता इस देखकर पूरे क्षेत्र में दौरा भी किए और इस युवक को देखा भी, लेकिन कोई अहम कदम नहीं उठाया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मानविकता के आधार पर कई स्वेच्छासेवी संगठन जहां शिलचर शहर में कार्यरत हैं, तो इसी दौरान एक युवक पिछले 7 दिनों से राजमार्ग के किनारे पड़कर सड़ रहा है और उसकी इलाज नहीं किया जा रहा है। ऐसे हालत में स्वेच्छासेवी संगठन के कार्यकर्ताओं पर भी सवालिया निशान लग रहा है। नाजुक हालात में जी रहे इस युवक का मौत कभी भी हो सकता है, क्योंकि इसके हाथ पैर शरीर के कई क्षेत्र कुछ अनजाने बीमारी के शिकार हैं और बेहाल हालात में जी रहा है। लोग उसे छूने से भी कतरा रहे हैं। नाजुक हालात में जी रहे इस किशोर को बचाए जाने के लिए सभी स्तर के लोगों से अपील भी किया गया है और निजी संगठन तथा स्वेच्छासेवी संगठन के कार्यकर्ताओं से उसे उद्धार कर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाए जाने का मांग भी रखा गया है।
सिलचर के सदरघाट क्षेत्र में स्थित चक्र अधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड बनाए जाने के दौरान लोगों की भीड़ बड़ी पैमाने पर देखने को मिल रही है। सुबह से लेकर शाम तक बड़े पैमाने पर लोग जमकर अपने आधार कार्ड बनाने में जुटे देखे जा रहे हैं। और तो एनआरसी में जिन व्यक्तियों का नाम नहीं आया है वो भी अपनी दावे के साथ आवेदन कर रहे हैं, लेकिन जिसके चलते पूरे इलाके में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इलाके में ट्रैफिक परिसेवा बुरी तरह जाम रहने पर आवागमन में लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। जबकि कर्मचारी दिन रात एक कर अपनी सर का पसीना पैर में गिराकर दिन रात यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। सरकारी कार्यकर्ताओं के ऐसे कर्मकांड के चलते लोग जहाँ एक तरफ खुश हैं तो वहीं दूसरी ओर लोगों को लंबी देर तक कतार में खड़े रहने पर परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। জানি না তো আমার বাঁচি যায় কিছু নাই 7 দিন তো সময় দিয়েছে আর এক সপ্তাহ কইছে কিন্তু সময় বাড়াইতে লাগবে যেমন মানুষ না 7 দিন সময় আছে, 7 দিনের ভিতরে পারবো না। आने वाले 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक गेम शुरू हो रहा है, जिसमें भारतीय दल के हॉकी दल भी भाग ले रहा है। और हॉकी दल के खिलाड़ियों को शुभेच्छा प्रदान किए जाने के उद्देश्य को सामने रख करीमगंज हॉकी संस्थान के उद्योग से बदरपुर के सेंट एंटनी स्कूल में एक प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोग भाग रहे हैं। खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रही है। इस ओलंपिक के इवेंट में जैसे हॉकी के क्षेत्र में खिलाड़ी बेहतरीन फलाफल कर पाए, इस संदर्भ में दुआ भी किया जा रहा है। जाने माने शिक्षाविद अब्दुल रजाक, असम हॉकी संस्था के सदस्य ताजुद्दीन, करीमगंज हॉकी अकादमी के निदेशक सलीम अहमद, सीनियर खिलाड़ी अर्नब ज्योति दे, आल अमीन अकादमी के शिक्षक इखलास हुसैन, ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ता अनवर हुसैन, करीमगंज हॉकी एसोसिएशन के सदस्य आबिदुर रहमान के मौजूदगी में इस दिन आनुष्ठानिक तौर पे उत्साहव्यंजक कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि 1921 साल के बाद लगभग 41 बैच আরম্ভ হবে প্যারিস অলিম্পিক হকি টিম অন্যান্য আমরা দেশের প্রায় 117 প্লেয়ার পার্টিসিপেট করবে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হকি ম্যাচ। এই হকি টিমরে আমরা তারারে উৎসাহ দেওয়ার লাগি, তারারে করার লাগি আজকের আমাদের এখানে জমায়েত বা আমাদের আজকের এখানে প্রশিক্ষণ শিবির। আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই। আর আমরা আশা রাখি আমাদের দেশ এইবার প্যারিস 2024 চ্যাম্পিয়ন হইব। আর আমরা সবার শুভকামনা থাকবো। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के स्मृतिचारण कमेटी के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ मंगल पांडे चौक पर उनकी प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण कर उन्हें श्रद्धा व्यक्त किया गया। इस दिन संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता उदय शंकर गोस्वामी, दिलीप कुमार तथा दूसरे वरिष्ठ दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में पुष्पांजलि अर्पण कर उनकी अमर जीवन गाथा पर आलोकपात किया गया। और मंगल पांडे चौक को सुचारू रूप से बनाए जाने में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने के लिए अपील भी किया गया।
1927 अंग्रेजी में भारतवर्ष का पहला स्वाधीनता संग्राम में श्री मंगल पांडे जी के जन्म बलिया में हुआ था। आज उनका 197वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। धीरे धीरे पूरा समाज में फैला था और धीरे धीरे राष्ट्र जागरण के लिए हजारों महापुरुष विनय बादल, दिनेश, खुदीराम, मास्टर सूर्य सेन, प्रफुल्ल सेन, खुदीराम, नेताजी सुभाष, हजारों देश युवक जवान उसी के आदर्श पर चलने लगा। इसी के कारण आज देश हमारा स्वाधीन हुआ। आज उनका चरण में हम सब आए हैं, इसलिए ईश्वर से हमारा प्रार्थना है कि उनका प्रति पूरा देश में और एक राष्ट्र जागरण का बात। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर अस्पताल लूट के संस्कार के मांग पर आवासीय क्षेत्र के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी संस्थान के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क अवरोध। जल्द से जल्द सड़क संस्कार का किया गया मांग। दक्षिण हैलाकांदी के घारमुड़ा बागचोड़ा इलाके में सरकारी जमीन पर घर बनाए जाने पर वन विभाग ने किया उच्छेद। आवासीय क्षेत्र के लोगों ने किया प्रतिक्रिया। जालेंगा क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन हड़पने की जा रही है प्रयास। किसके प्रभाव से 400 से भी ज्यादा बीघा जमीन अपने गिरफ्त में किए हैं, जानने के लिए उत्सुक हैं बस जालेंगा क्षेत्र के लोग। बाल शिशु मौसम विभाग को लेकर देश के विभिन्न क्षेत्र में तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने वक्तव्य के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्कूल के एक छात्रा दिया गया संबर्धना। हैलाकांदी जिले के जानकी बाजार क्षेत्र में देह व्यापार से जुड़े एक महिला को गिरफ्तार करने के साथ साथ सजा के मांग पर किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। घर बार में किया गया तोड़फोड़।